بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری طبیعت شروع سے ہی شرارتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں بھی نہ ہی کوئی میرا محبوب بن سکا اور نہ میں کسی کی محبت۔ سہیلیاں اپنی کہانیاں سناتی تو میں انہیں حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ ویسے سچ بات ہے، میرے قریب آنے کی کوئی کوشش بھی کرتا تو میں اس کی ایسی درگت بناتی کہ دوبارہ ایسی جرت ہی نہ کرتا۔ خیر، اس کے برعکس میری سہیلیاں کافی تھیں اور وہ مجھے پیار محبت کی کہانیاں بھی سناتی رہتی تھیں، مگر پھر یوں ہوا کہ میری سبھی سہیلیوں کو کوئی نہ کوئی اپنا ہم سفر مل گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اب مجھے جہاں جانا ہوتا میں اکیلے ہی جاتی، شاپنگ ہو یا پھر ہوٹل میں کہیں لنچ وغیرہ کرنا ہو۔ ایک دن میں بسم اللہ فوڈ کارنر میں بیٹھی اپنی تنہائی کا ماتم کر رہی تھی کہ میری نظر ایک کپل پر پڑی۔ میں نے دل میں سوچ لیا، کچھ اور نہ صحیح بیٹھ کر ان کی باتیں ہی سن لیتی ہوں۔ خیر، میں نے اپنا سر نیچے کر لیا اور دھیان سے ان کی باتیں سننے لگی۔ میں اپنے انداز سے یوں ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہ ہو، حالانکہ میری پوری توجہ انہی کی طرف تھی۔ تھوڑی دیر تو ان دونوں کے بیچ میں خاموشی چھائی رہی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ لڑکی کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ لڑکا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اس سے معافیا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میرا یقین کرو، اس میں میرا کوئی دوش نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حالات سازگار ہونے دو، میں تمہیں فوراً ہی اپنا لوں گا۔ تم جانتے ہو تمہارے علاوہ آج تک کوئی میرے دل میں نہیں آیا، مگر یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری کوئی نیت شامل نہیں تھی، مگر تم دیکھ لینا، جیسے ہی موقع آئے گا میں تمہیں اپنانے میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، دیکھ لینا، تب تمہیں میری محبت کا یقین آئے گا۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا تو میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی میری نظر اسی ٹیبل کے مخالف کرسی پر بیٹھے ایک اور شخص پر پڑی، جو اپنے سامنے بیٹھے لڑکے اور لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون بھی تھا، جس سے وہ مسلسل غیر محسوس انداز میں ان دونوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ میں حیران پریشان کبھی لڑکے کو دیکھتی اور کبھی اس کپل کو جو پاس والے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ جو کپل بیٹھا ہوا تھا اس میں لڑکے کی پیٹھ میری جانب تھی، لڑکی کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر دور بیٹھے شخص کی حرکات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے لڑکی کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے اور وہ ان دونوں کی تصویریں بنا کر خدا جانے کسے بھیج رہا تھا۔ مسلسل کسی سے فون پر رابطے میں بھی تھا، ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ کا مینیو بھی دیکھتا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر ایک دو چیزیں آرڈر کی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر غضبناک تاثرات تھے۔ پھر نہ جانے کسی نے دوسری طرف سے کیا بات کی کہ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں اور پھر دوبارہ فون رکھ کر لڑکے لڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ میں ان حالات کو دیکھ کر تھوڑی پریشان بھی ہو گئی تھی، سچ پوچھے تو کھانے پر میرا دھیان بھی نہیں تھا۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کے ساتھ بیٹھے لڑکے کو کسی کا فون آیا۔ وہ فون سن کر بنا کچھ کہے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ اب پیچھے بیٹھی لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی دیا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری کالج کی سہیلی حمیرہ تھی، جس کے دن رات وسیم کی محبت میں ڈوبے گزرتے تھے۔ وسیم کی محبت پر اسے بڑا مان تھا، وہ اکثر ہمیں اس کی اور اپنی پیار بھری کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ میں نے حمیرہ سے نظریں چار کی تو اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ کے آثار تھے۔ میں اپنے ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور بھی رونے لگی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے پاس پڑا ٹیشو پیپر اٹھا کر اسے دیا۔ حمیرہ، کیوں رو رہی ہو؟ خدا کے لیے چپ کرو، یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، آخر مجھے کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ میں نے فکر مندی سے کہا تو وہ تھوڑی نارمل ہوئی۔ اسے بھی احساس ہو گیا کہ یہ رونے کی جگہ نہیں ہے۔ میں جانتی تھی وہ مجھے بتانے والی تو کچھ نہیں ہے، سو میں نے دوستی کا پتہ پھینکا اور کہا، تم مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں، آخر مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے اور وسیم کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ کیسی دوستی ہوئی؟ تم مجھے دوست بھی کہتی ہو اور پھر اپنے راز بھی نہیں بتاتی۔ اب وہ کافی نارمل ہو چکی تھی، سنبھل کر بیٹھی اور کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں میں کیا بتاؤں نورالعین کہ میرے ساتھ کیا کیا بیتی ہے۔ وسیم جو مجھ پر مرتا تھا، اپنی جان نچھاور کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ محبت میں ہر حد پار کر لی۔ میں نے بھی اپنا سب کچھ اس پر وار دیا اور ہم محبت میں اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، مگر اس بے وفا نے کیا کیا، اپنے ماں باپ کے ذرا سے دباؤ میں آ کر ان کی مرضی سے کہیں اور شادی کر لی، اور اب مجھے جھوٹی قسمیں دے رہا ہے کہ وہ مجھے حالات سازگار ہوتے ہی اپنا لے گا۔ ارے کون سے حالات؟ اس دوران اگر اس کا بچہ ہو گیا پھر تو وہ کبھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑے گا، پھر میں کیا کروں گی؟ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اتنا بزدل ہے تو میں کبھی اس پر اندھا اعتبار نہ کرتی۔ مجھے حمیرہ کی باتوں پر افسوس ہوا،
वसीम की मोहब्बत पर वो वाकई फ़ख्र किया करती थी। कॉलेज से छुप छुप कर उससे मिलने जाया करती थी। लेकिन कहते हैं ना, बुरे रास्ते पर चलकर कभी भी आपको हलाल मंजिल नहीं मिलती। हुमैरा के साथ भी यही हुआ था। लेकिन मैंने उसे ये बात नहीं कही कि वो पहले ही परेशान थी। ऊपर से मैं उसे ताने देती तो उसका दिल टूट जाता। मैंने उसे नॉर्मल करने के लिए हंसाना शुरू कर दिया। वो भी रोते रोते खिलखिला पड़ी। मुझे उसका हंसना बहुत अच्छा लगा। मैंने जिद करके उसे शॉपिंग करने पर राज़ी कर लिया। खाना खाकर हम होटल से निकले और हुमैरा के साथ हम कपड़ों के एक मॉल में चले गए। हुमैरा कपड़ों और फैशन की तो दिलदादा थी। उसे नित नए मलबूसात और फैशन करना बहुत पसंद था। अक्सर हुमैरा, मैं और मेरा भाई शॉपिंग करने जाते थे, क्योंकि हुमैरा का कोई भाई नहीं था। हम दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत देखकर वो हम पर रश किया करती थी। कहती थी, काश मेरा भी अहमद जैसा कोई भाई होता तो मुझे शॉपिंग पर ले जाता। मैं उसे कहा करती थी कि अहमद तुम्हारा भी भाई है। खैर, हम बातें करते करते जा रहे थे। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कोई हम दोनों का पीछा कर रहा है, मगर मैंने तवज्जो नहीं दी। मेरा सारा ध्यान हुमैरा को नॉर्मल करने में लगा हुआ था। हम शॉपिंग मॉल में पहुंचे। यहाँ नित नए मलबूसात लगे हुए थे। हम दोनों अभी कपड़े देख ही रहे थे कि हमारे पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ख़वातीन के कपड़े देखने लगा। मुझे हैरत हुई, मर्द होकर इसे ख़वातीन के कपड़ों के साथ क्या दिलचस्पी है। अगर घर की किसी औरत के लिए कपड़े चाहिए थे तो औरत को भी साथ ले आता। खैर, चाहिए होंगे किसी महबूबा के लिए, मैंने सोचा और चुप करके हुमैरा के लिए एक सूट देखने लगी। हुमैरा के साथ ही वो शख्स खड़ा था। थोड़ी देर के बाद उसने गला खंखार कर उसे मुखातिब किया और बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी शॉपिंग में थोड़ी मदद कर दें। वो दरअसल बात यह है कि मैं अपनी बहन के लिए एक जोड़ा पसंद करने आया था। कल उसकी सालगिरह है और मुझे तो ख़वातीन की पसंद का कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ मिलकर एक दो जोड़े सेलेक्ट कर दें। बहन भाई का रिश्ता तो हुमैरा के लिए पहले ही बड़ा अहम था, शायद इसलिए कि उसका कोई भाई नहीं था। बाकी बातें नज़रअंदाज करके हुमैरा ने पूछा, लगता है आपको अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत है? उसके लहजे में अजीब सी हसरत थी। हाँ, बहुत मोहब्बत। इतनी मोहब्बत कि अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। नौजवान के लहजे में इतनी कतईयत और इतनी मजबूती थी कि मैं ठटक कर रह गई। उसका अंदाज आमियाना नहीं था, बल्कि लहजा धमकी देने वाला था। उसके इस लहजे पर मैं भी हैरान रह गई और पलटकर उसे देखा तो हैरान ही रह गई। ये वही शख्स था जो होटल में बैठा हुमैरा की और वसीम की तस्वीरें बना रहा था। मुझे अजीब सा लगा, मैं उसे देखती रह गई। खैर, हुमैरा ने उसे मिलकर चंद जोड़े पसंद करके दे दिए, जिस पर उसने बहुत खुशी का इजहार किया और कहा कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता था। हुमैरा का शुक्रिया अदा करके वो चला गया। मुझे तो हुमैरा पर गुस्सा आ रहा था कि वो एक अजनबी से इतने बेतकल्लुफाना अंदाज में बात ही क्यों कर रही थी, मगर हुमैरा को कोई परवाह नहीं थी। खैर, मैंने भी उसे कुछ न कहा और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगले ही दिन एक बार में वो नौजवान हमें दोबारा मिल गया। अब की बार उसने हुमैरा से उसका नंबर भी ले लिया। इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। नौजवान का हिस्से मज़ा काफ़ी अच्छा था। वो हुमैरा को हंसाता तो हुमैरा हंस हंस कर लूट पूट हो जाती। इसी वजह से वो शायद वसीम की मोहब्बत को भूल गई थी, या शायद उसकी बेवफाई के गम को वक्ती तौर पर साकिब की मोहब्बत ने भुला दिया था। खैर, अभी भी बात परेशानी की नहीं थी। दोनों इतने करीब नहीं आए थे। वैसे भी हुमैरा को अपने पिछले तजर्बे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। उनकी बात अभी तक दोस्ती में थी, सो मैं भी अक्सर उनके साथ ही होती थी। अगरचे मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर हुमैरा की खुशी को देखते हुए मैं अक्सर इन दोनों के साथ आ जाती थी। एक दिन साकिब ने मेरे सामने ही हुमैरा को प्रपोज कर दिया। उसने कहा था, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और जी चाहता है कि तुम यूं ही मेरे सामने खिलखिलाती रहो। गो के साकिब को हुमैरा दिल ही दिल में पसंद करती थी, मगर अभी तक वसीम की बेवफाई का जख्म उसके दिल से गया नहीं था। वो यकदम उसके इजहार मोहब्बत पर खो सी गई और ख्वाबनाक से लहजे में बोली, साकिब, पता है, मोहब्बत सभी करते हैं, रिश्ता सभी रखना चाहते हैं, मगर अपनाता कोई नहीं है। हम सफ़र तो बहुत हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई नहीं। उसके इस फलसफियाना अंदाज पर खिलाफ तवक्का साकिब ने कोई मजाक नहीं उड़ाया और ना ही उसकी बात पर हंसा, बल्कि इंतहाई संजीदा और जज्बाती लहजे में बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दिल लगी कर रहा हूँ या फिर मेरी मोहब्बत में कोई सदाकत नहीं है तो आजमा लो मुझे। जब कहोगी मैं तुम्हारे घर अपने माँ बाप को भेजकर तुम्हारा हाथ इज्जत से मांगूंगा और फिर इज्जत से तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। उसके इस फिल्मी डायलॉग पर तो हुमैरा लट्टू ही हो गई। फौरन बोली, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है,
मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, बल्कि मुझे खुशी होगी कि तुम मेरे हमसफ़र होगे। मगर याद रखना, शादी की उम्मीद दिलाकर तुम मुझसे किसी भी किस्म की तवक्कात मत वाबस्ता करना। मैं ना ही तुमसे मिलूंगी और ना ही किसी किस्म के रवाबित रखूंगी। जब तुम रिश्ता लेकर आओगे तभी बात होगी। साकिब ने तो हुमैरा को अपना वादा पूरा करके सचमुच हैरान भी कर दिया और अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिला दिया। अगले ही दिन वो अपने माँ बाप को लेकर हुमैरा का हाथ मांगने आ गया। हुमैरा तो खुशी से फूले न समाती थी। हुमैरा के माँ बाप को भी कोई एतराज़ नहीं था। वैसे भी घराना भी मुनासिब था और घर में नंदों और देवरों का भी ज़्यादा झंझट नहीं था। सिर्फ एक बहन थी जो शादीशुदा थी। बाकी बूढ़े वालिदैन थे जो एक एनजीओ से वाबस्ता थे और अक्सर अपने कामों में ही मसरूफ़ रहते थे। काफ़ी पढ़ा लिखा ख़ानदान था। मैं हुमैरा को बताती रह गई कि जिस शख्स से तुम मोहब्बत करती हो वो मुझे थोड़ा मशकूक लगता है, मगर उसने मेरी एक न सुनी। कहने लगी, तुम तो हमेशा ऐसे ही करती हो, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में आकर तरह तरह की बातें करके उन्हें दूर करने की कोशिश करती हो। खुदा जाने तुम्हें मोहब्बत करने वालों से क्या बैर है। हुमैरा की बात मुझे बुरी लगी, मगर मैं चुप रही। मैं क्या कर सकती थी। वैसे भी ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका मेरे पास सबूत होता, लेकिन इस बात का हुमैरा के रिश्ते से क्या ताल्लुक था ये तो उसे बाद में पता चला। अब आगे की कहानी आप उसी की जुबानी सुनिए। शादी की तारीख मुकर्रर होने के बाद मैं बहुत खुश थी। वसीम की बेवफाई भुलाकर मैं साकिब की मोहब्बत के सपनों में खो गई। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि अब कभी वसीम से बात नहीं करूंगी। अगर वो मुझे ये भी कहे कि मुझसे शादी करने को वो आज ही राजी है, तो भी मैं उसका हाथ नहीं थामूंगी, क्योंकि साकिब ने मुझे उस वक्त मोहब्बत और एतबार दिया था जब मुझे वसीम छोड़कर चला गया था और मैं तन्हा रह गई थी। मेरी नज़रों में साकिब बहुत आला ज़र्फ इंसान था, जिसने बिना किसी गर्ज के और बिना ही मेरा माजी जाने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की थी और अपना वादा भी पूरा कर दिखाया था। मंगनी के बाद शादी तक के दिन कैसे गुजरे मुझे कुछ अंदाज़ा ही न हुआ। मैं और साकिब आने वाले दिनों के सपने बुनते थे और फिर वो दिन आ ही गया जब मैं और साकिब निकाह के दो बोल बोलने के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैंने उसी दिन अपना पुराना नंबर बंद कर दिया और सिम काट कर फेंक दी। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं वसीम से कोई राब्ता नहीं रखूंगी, मगर मेरे हवासों पर बिजलियां तब गिरी जब मैंने उसे शादी के मेहमानों में देखा। वो भी मुझे देखकर ठटक गया था। उसकी आंखों में मेरे लिए अजीब से तासुरात थे। मैं कुछ न बोली, क्योंकि मैं अब कभी भी उससे राब्ता रखना ही नहीं चाहती थी। ये तो कुदरत ने उसे मेरे सामने ला खड़ा किया था। खैर, आज के दिन की खुशी मैं वसीम की यादों में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सारी रस्मों से फारिग होकर जब मुझे मेरे कमरे में पहुंचाया गया तो मेरी समातें साकिब की आहट की मुंतज़िर थीं। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि हमारा ये रिश्ता हमेशा कायम रहे, मगर मैं क्या जानती थी कि आज की रात ये रिश्ता इस कदर तल्ख हो जाएगा। साकिब धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया। मैंने नज़र उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा। मेरा घूंघट उठाए बिना ही उसने जो अल्फाज बोले, उसने जैसे एक लम्हे के लिए मुझे साकित कर दिया। बिना सलाम दुआ किए उसने बड़े ही तंजिया लहजे में कहा था, पता है मैं कौन हूँ? बल्कि मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ तुम कौन हो। तुम वो लड़की हो जो दूसरों के घर बर्बाद करती हो, शादीशुदा मर्दों पर अपनी मोहब्बत के डोरे डालती हो, और तुम ये तक भूल जाती हो कि उस शख्स के घर में भी एक औरत है जिसकी आंखों में तुम्हारी तरह के सपने हैं। वो भी अपने शौहर को बांटना नहीं चाहती, मगर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो अपनी मोहब्बत हासिल करना थी। मगर मैंने तुम्हें अपनी बहन का घर बर्बाद करने नहीं दिया। मेरा भिनोई वसीम अगरचे तुमसे मोहब्बत करता था, मगर मैंने भी कसम खाई थी कि मैं कभी उसे अपनी बहन का घर बर्बाद करने न दूंगा, और इसी मकसद के लिए मैंने तुमसे मोहब्बत का ड्रामा किया, हालांकि मुझे तुमसे शदीद नफरत थी। खैर, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो वो करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा, और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारी ये तस्वीरें तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को दिखाऊंगा। तुम्हें ऐसा बदनाम करूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, और तुम्हें इसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। हाँ, दूसरा रास्ता ये है कि तुम मेरी बात मान लो। ये कहकर उसने साथ वाली शल से कुरान पाक उठाया और मेरे सर पर रख दिया। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मोहब्बत का ताजमहल एक पल में चकनाचूर हो गया था। मैं जिसे अपनी मोहब्बत का दीवाना समझती थी, उसके दिल में लगी आतिश इश्क तो किसी के इंतकाम की आग थी। मैं शायद किसी के बदले की भेंट चढ़ चुकी थी। मैंने लरसते हुए होंठों से पूछा था, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी साकिब। अब तो तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं हूँ।
तुम मुझे हासिल कर चुके हो, तुम्हारा इंतकाम पूरा हो चुका है। बोलो, क्या कहूँ मैं, क्या सुनना चाहते हो तुम? मेरी बात के जवाब में वो कुछ न बोला। फिर मेरे सामने एक कागज़ रखा जिसे मैंने अपनी तरफ से बोलना था। मैंने कुरान सर पे रखकर इस बात का इकरार किया कि मैं सारी ज़िंदगी कभी भी वसीम से बात नहीं करूँगी। अगर वो मुझसे कोई बात पूछे तो भी मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, चाहे ये मुझे कितना ही अजीब क्यों न लगे। मजबूरन मैंने कसम खा ली और मेरे पास रास्ता भी क्या था। वैसे भी अब वसीम की मोहब्बत मेरे दिल से निकल चुकी थी, मगर साकिब की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ कि इस शख्स ने अपनी बहन का घर बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों किया। अगर ऐसा हो भी गया था तो कम अज़ कम मुझसे ये राज छुपाए ही रखता कि मैं उसकी मोहब्बत को मोहब्बत ही समझती रहती। मगर उसने तो जैसे मेरे सामने ही मेरे ईमान का, मेरे यकीन का खून कर दिया। खैर, अब तो वो मेरा शौहर था, उससे मोहब्बत करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी अना को ना चाहते हुए भी दबा लिया। दिन रात खिदमत करके उसका दिल तो जीत लिया, मगर दिल से ये ज़ख्म कभी नहीं जाएगा। गो कि आज वो मुझसे नफ़रत की बजाय मोहब्बत करता है, मगर मेरे दिल में आज भी शिकवे और शिकायतों का एक समंदर है जो न जाने कब बहेगा। आपके ख्याल में क्या साकिब ने अपनी बहन का घर बचाने के लिए सही कदम उठाया, या फिर उसे हुमैरा को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।